Hello to everyone, welcome back in our channel. Today we are going to discuss the three main principle out of the 12 principle, and this is the part of lecture in principle of green chemistry, designing a chemical synthesis. Today we are covering the three important principle, that is the use of renewable feedstock, reduce derivative and the catalysis. Okay, let's get started. First principle is prevention of waste or byproduct, in which the waste is not generated, then there is no need of treatment to eliminate the waste. Simply, if we carry out the synthesis likewise, then we will convey a proper synthesis that consider as a green synthesis. In the second principle, we will discuss the atom economy. In the atom economy, if we consider the type of reaction, and out of that reaction, by Barry Toast, he introduced the concept of atom economy first. According to him, the addition and rearrangement reaction or isomerization reaction are 100% in consideration of atom economy. If we consider the catalytic reaction, it is below that 100%, or we say that atom economy of catalytic reaction is less than the addition or rearrangement reaction. Similarly, the atom economy decreases in stoichiometric reagent reaction, chiral resolution, and substitution and elimination reaction. The atom economy can be expressed in the form of percentage, so it can be expressed as a percent atom economy, and it can be easily calculated by the formula like this: molecular weight of product divided by molecular weight of reactant, and the whole entities is multiplied with the 100. So the atom economy is the most important concept. If the reaction has a higher atom economy, then according to the principle second, the reaction considered as a green reaction. So there is a very less waste of the atom as a waste product, which is considered as a more greener reaction. So in this reaction we discuss the Diels-Alder reaction, and the second reaction is the co-rearrangement. Both are the rearrangement reaction in which there is a 100% conversion of the reactant to product. There is a 100% atom economy. We can say atom economy is 100% in the both reaction. Now in the next lecture we discuss the principle 3, 4, 5 and 6. According to the principles 3, prevention and minimization of hazardous product is the main constituent of this. If you consider the prevention and minimization of hazardous product, now just let me clear again that the product indicate the starting material or the content which is used for the synthesis of that reaction. In comparison with, or to understand this principle, we consider the two reagent which can be used for the conversion of aldehyde to alcohol by the process of reduction, that is the lithium aluminum hydride and sodium borohydride. Hazardous in consideration of their handling. If we consider the lithium aluminum hydride, then we should know that this reagent is highly, or it react violently or aggressively with the water. In presence of water, this reagent get catch fire or may explode. In contrast with that, sodium borohydride has a less reactivity in consideration to the water molecule, and it can be easily handled. So whenever there is a possibility of reduction of carbonyl compound, so we have two choices. One is the lithium aluminum hydride, and second one is the sodium borohydride, NaBH4. So we will consider which reagent is more safe. So in this case, as per the discussion, we know that the lithium aluminum hydride is hazardous and the sodium borohydride is less hazardous. Along with that, the reactivity of sodium borohydride is less and lithium aluminum hydride is more. Whenever we need the selective reaction, so we will use the sodium borohydride as a reagent. Then we discuss the second example, that is the bromination. The bromination can be carried out by the two steps. First one is the using bromine in acetic acid, and second one is using CAN NaBH4 in NaBH4. So if we consider the CAN is the ceric ammonium nitrate, the full form of this CAN is ceric ammonium nitrate. If we use that reagent in this reaction, then we will get the same product, that is a bromination at the para position of acetanilide. Starting material is acetanilide, उस पे ब्रोमिनेशन की रिएक्शन हम कैरी कर रहे हैं. ग्लासियल एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में हम अगर ये रिएक्शन कैरी करते हैं,
तो हमें मिलता प्रोडक्ट है पैराब्रोम एसिटोनालाइड। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो हम यूज कर रहे हैं, कैन हम जो यूज कर रहे हैं, उसमें इन सिटू ब्रोमीन जो है वो जनरेट होता है। अगर इन सिटू ब्रोमीन जनरेट होता है तो फिर उसको हैंडलिंग या तो उसका जो भी हजार्ड जो केमिस्ट उसे हैंडल कर रहा है, जो ये रिएक्शन कैरी कर रहा है, उस पर उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो हम अगर ये दोनों रिएक्शन को कंपैरिजन करें तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन जिसमें ब्रोमीन ग्लाइसिल एसिटिक एसिड में यूज किया गया है, जिसे यूज करना और हैंडल करना बहुत ही दिक्कत वाला काम होगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, एज पर दिस रिएक्शन इज वेरी सेफ फॉर हैंडलिंग, so this second reaction considered as a green reaction and the first reaction is not a green reaction. Then the principle third can be explained likewise, the material that either starting material or the reagent that should be a safe one. So next one is the designing safer chemical product. If we consider the formation of product, नया प्रोडक्ट कोई फॉर्म हो रहा है तो उसकी सेफ्टी या तो उसका टॉक्सिसिटी जो है हमें वो वहाँ पे देखना होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इफ यू कंसिडर दिस रिएक्शन और पर्टिकुलरली दिस प्रिंसिपल, the principle started with the consideration of the thalidomide, one of the example which has a thalidomide disaster. We used drug in the past. In 1961 it can be used. अगर हम थैलिडोमाइड ड्रग्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि थैलिडोमाइड ड्रग्स जो है वो यूज किया जाता था प्रेगनेंसी में, जो मॉर्निंग नौशिया होता है, मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, उसे दूर करने के लिए। लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया गया तो पता चला है कि बहुत सारे बच्चे जो है इससे प्रभावित हुए और इसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से उनमें डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वह जनरेट हुआ। तो ये डिफेक्ट जनरेट होने का रीजन था ये पर्टिकुलर ड्रग जो थैलिडोमाइड हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो थैलिडोमाइड में दो पॉसिबिलिटीज होती है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हो तो नाइट्रोजन जिसपे वैलेंसी 3 बॉन्ड से कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस पे फिर भी एक लोन पेयर जो है वो यहाँ पे रहती है। अगर ये लोन पेयर बिलो द प्लेन है या अबो द प्लेन है, इस वजह से इस थैलिडोमाइड के दो स्ट्रक्चर जनरेट हो गए, एक R कॉन्फ़िगरेशन होगा और दूसरे का S कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट तब पता नहीं था, बड़ी क्वांटिटी में रेसिमिक मिक्सचर जो है एज अ ड्रग यूज किया गया और उसके बाद ये डिफेक्ट जो है वो स्टडी में आए। स्टडी करने के बाद पता चला कि दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द थैलिडोमाइड। So this kind of drug or this kind of molecule should not be prepared or should not be manufactured. Next principle is the energy requirement for the synthesis. If we consider the energy requirement directly और indirectly, ये दोनों स्तर पे काम करती है। अगर हम energy requirement की बात करते हैं तो energy requirement में क्या होता है कि जब भी हमें energy की requirement होती है किसी reaction को carry करने के लिए, तो रिएक्शन में जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो हीट या लाइट के सोर्स में हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कंसिडर करें कि हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट जनरेशन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या तो फिर हीट सोर्स के लिए कुछ फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली पोल्यूशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा जब हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है हमें पता है सबको कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल प्लांट जो है वहां से थर्मल एनर्जी पावर प्लांट होता है, उनमें कोल बर्न होती है और उनके वजह से जो टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर की स्टीम जनरेट होगी, उसमें टरबाइन रोटेट होगा और उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो जितना इलेक्ट्रिसिटी हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं उतना ही हम पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो इन अनदर टर्म, जो अगर एनर्जी कम लग रही है तो प्रॉफिट जो है वो प्रोसेस का बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट हम कुछ कम कर सके किस रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम ग्रीन रिएक्शन कह सकते हैं। जो पहली रिएक्शन थी उसके हिसाब से सेकेंड रिएक्शन जो भी बनती है उसे हम बोलेंगे ग्रीन रिएक्शन। तो रिएक्शन जब भी हम कंसिडर करते हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कंसिडर करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला है लेस टाइम रिक्वायरमेंट। अगर रिएक्शन को लगने वाला टाइम कम हो तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन को कम टाइम लग रहा है, मतलब जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो कम समय के लिए हमें उसे इनपुट करनी है। सेकेंड है कि एम्बिडेंट कंडीशन हमें मेंटेन करनी है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा टेम्परेचर अगर बढ़ा दें फिर भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होगी, जितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए था उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पे बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो है रिएक्शन को प्रोसीड करने में या तो उसका यील्ड बढ़ाने में कोई मदद नहीं करता। कई रिएक्शन में प्रेशर जो है हमें मेंटेन करनी होती है, तो उसे भी उस लेवल पे मेंटेन किया जाए जहाँ पे हमें मैक्सिमम यील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। इसमें और एक
कंसेप्ट आता है जिसे हमें आगे पढ़ना भी है एज ए एनर्जी रिक्वायरमेंट। कैटालिसिस के अगर जब हम बात करते हैं तो कैटालिस्ट जब भी हम यूज करते हैं तो हम एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर देते हैं, उसे हम डिटेल में इस लेक्चर के अगले स्लाइड में पढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पे फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे एक्वियस पोटेशियम साइनाइड जो है वहाँ पे Cn माइनस एज अ रिएजेंट यूज किया गया है और Cn माइनस का अटैक यहाँ पे CH2 पे होगा और Cl को उसे रिप्लेस करना होगा। तो this type of substitution reaction is carried out in phase transfer catalyst where the potassium cyanide is dissolved in aqueous condition while this benzyl chloride is in the organic phase। तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमें फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट की जरूरत होगी, फिर साइनाइड अटैक जो है वो पॉसिबल होगा और कम समय में हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो स्टेप है वो कंप्लीट होती है। सिमिलरली इन केस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट कंसिडरेशन वी कैन यूज another approach where we can use the microwave, जहाँ पे हम रिएक्शन का टाइम जो है रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन in which we use the microwave and this reaction is completed in the 12 minute. If we consider same kind of reaction, so we need about 1 to 2 hours। एक ये तो 2 घंटे तक हमें इस पूरा रिएक्शन को रिफ्लक्स करना होगा, उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो ब्रेकडाउन है या तो लाइसिस है उसे कंप्लीट होने के लिए ऑर्डिनरी रिएक्शन कंडीशन में 1 to 2 आवर्स हमें रिफ्लक्स करना है और जब भी हमें रिफ्लक्स करना है तो तब हमें हीटिंग करना होगा। तो हमें इनडायरेक्टली क्या यहाँ पे बता सकता हूँ कि 1 to 2 घंटे तक हमें कम्प्लीटली इसे हीट करना है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यही रिएक्शन हम माइक्रोवेव में अगर करते हैं तो विद इन द 12 मिनट्स वी कैन कंप्लीट दिस रिएक्शन। सो दिस काइंड ऑफ अल्टरनेटिव rather than the conventional reflux method we can use the microwave techniques and that technique can be reduce the reaction time in the many folds indirectly what it reduces the energy requirement। So this kind of approach from the conventional to the microwave is also considered as a green approach। in the next principle we see the selection of suitable solvent। जब भी हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सॉल्वेंट का सिलेक्शन जो है वो एक अलग प्रिंसिपल में यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। यूज ऑफ हजार्डस मटेरियल, यूज ऑफ हजार्डस रिएजेंट, वहाँ पे भी हम इसे कंसिडर कर सकते थे। जैसे कि कैटालिस्ट हम 2 प्रिंसिपल में काउंट करें, एक एनर्जी रिक्वायरमेंट में और कैटालिसिस का एक अलग से प्रिंसिपल यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो जब भी हम सुटेबल सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सुटेबल सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, तो पहले हम जान ले कि सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो सिंपली जब सॉल्वेंट हमें यूज करना है तो वहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि सॉल्वेंट का एप्लीकेशन एग्जैक्टली क्या है। तो सॉल्वेंट 2 फेजेस को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। अगर हम कंसिडर करें कि एक रिएजेंट जो है वो सॉलिड फेज में है, दूसरा रिएजेंट जो है वो लिक्विड फेज में है, या तो दूसरा रिएजेंट भी सॉलिड फेज में है, दोनों में रिएक्शन होने के लिए दोनों रिएजेंट का एक फेज में होना जरूरी है। कंसिडर करें कि दोनों रिएजेंट लिक्विड फेज में लेकिन एक एक्वियस फेज में और दूसरा ऑर्गेनिक फेज में, वहां पे भी हमें एक सुटेबल ऐसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी जो इन्हें मिक्सअप करेगा, एग्जैक्टली क्रिएटिंग द होमोजीनियस सिचुएशन। लेकिन जब भी सॉल्वेंट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद सॉल्वेंट का जो रोल है वो खत्म हो जाता है और सॉल्वेंट हम एनवायरनमेंट में एक तो रिलीज करते हैं। जब भी ये सॉल्वेंट एनवायरनमेंट में रिलीज होगा तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इससे कोई हजार्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ if we consider this principle we use the word suitable solvent। तो जब भी ग्रीन रिएक्शन की हम बात करते हैं तो हमें सॉल्वेंट का अल्टरनेटिव ढूंढना है जो ज्यादा सेफ होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वी कंसिडर एज द हजार्डस सब्सटेंस हमें यूज नहीं करना है। तो सुटेबल सॉल्वेंट में भी वही चीज है, जब हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो हम सॉल्वेंट की सेफ्टी देखना है जिसे हैंडल करना इजी होगा और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब हम इस सॉल्वेंट को एनवायरनमेंट में रिलीज करने वाले हैं तो उसका हजार्डस इफेक्ट एनवायरनमेंट में कुछ भी ना हो, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत हमें होती है। तो सॉल्वेंट सिलेक्शन के लिए हमें जब भी कंसिडर करना है तो सॉल्वेंट में 2 चीजें यहाँ पे जानना जरूरी है कि फर्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है तो उन सॉल्वेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ऐसे सॉल्वेंट हम किसी रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इजीली ये सॉल्वेंट जो है इवोपरेट हो गए और इवोपरेट होने के बाद एनवायरनमेंट में बड़े क्वांटिटी में रिलीज हो गए। एनवायरनमेंट में जाने के बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइट के साथ
इनकी रिएक्शन होगी और लेड के साथ इनकी रिएक्शन होने के बाद तो रेडिकल हो गए या अदर काइंड ऑफ कंपोनेंट्स हो गए। इन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स बनने के बाद एनवायरनमेंट में अलग अलग पैरामीटर्स पे इफेक्ट करेंगे। तो हमें इस्तेमाल करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हम जो सॉल्वेंट यूज करें तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ना हो। तो इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, तो अगर वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को कोई अल्टरनेटिव हमें मिले तो उस कंपोनेंट को हम यूज कर सकते हैं। इसमें बेंजीन का एक एग्जांपल है जो हाईली यूज होता था एज अ सॉल्वेंट, जिससे ल्यूकेमिया जैसा कैंसर जो है, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, इसके हाई एक्सपोजर से स्किन कैंसर के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरीके के सॉल्वेंट जो है हम वो ना यूज करें। सो बेंजीन इज नॉट सुटेबल सॉल्वेंट, इवन दैट एन-हेक्सेन इज नॉट सुटेबल सॉल्वेंट, इट कैन कॉज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या होती है कि न्यूरॉन्स पे ये इफेक्ट करता है और जो न्यूरल नेटवर्किंग है, अगर हमें यहाँ पे किसी ने पिन अप किया तो हम इसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है और हम उसमें रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस रिस्पॉन्स को या इस काइंड ऑफ मैसेंजर जो है उनको डिस्टर्ब करने का काम ये न्यूरोटॉक्सिन्स करते हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने हैं, उसका अल्टरनेटिव जो सॉल्वेंट हो गए, जो सेफ हो गए, उसे हमें इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों में उभर के आते हैं ऐसे सॉल्वेंट जिनको हम ग्रीन सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसमें वाटर है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है। इस काइंड ऑफ सॉल्वेंट इज कंसिडर एज अ ग्रीन सॉल्वेंट। तीसरे कॉलम में जो भी सॉल्वेंट है हमें उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इन सब से कोई ना कोई टॉक्सिक इफेक्ट एसोसिएटेड है। इनमें से बहुत सॉल्वेंट है कार्सिनोजेनिक इफेक्ट बताते हैं, एक्टिव कार्सिनोजेन हम इनको बताएंगे। बहुत सारे सॉल्वेंट जो है वो करोजिव प्रॉपर्टीज बताते हैं और अदर प्रॉपर्टीज जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस तरीके की प्रॉपर्टीज ये सॉल्वेंट बताते हैं। इनमें आप अगर देखोगे तो क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का इस्तेमाल भी ग्रीन केमिस्ट्री में अवॉइड किया हुआ है। इसका एक सिंपल सा रीजन है, जब भी क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट है और कोई भी हो, अगर क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड है वो ब्रेक होता है तो क्लोरीन रेडिकल जो है वो इसमें से रिलीज होगा। अगर क्लोरीन रेडिकल रिलीज होता है तो एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन डिप्लीशन की जो कंडीशन है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। Hence, there is a strict restriction of the use of chlorinated hydrocarbon or solvent over the reaction. Similarly, pyridine has an adverse effect in case of impotence in the human being, human male impotency causing agent. Some alternative can be used instead of the solvent. We can use the supercritical fluids. What is meant by supercritical fluid? The supercritical fluid is nothing but the low temperature fluid of that particular component. So if we consider the alternative of the traditional organic solvent, the water, carbon dioxide, methane, methanol, ethanol and acetone, if it is super cooled, then this act as a gaseous molecule can easily penetrate in the molecular structure. Even that the starting material is solid. अगर हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में वाटर अगर कंसिडर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, ड्राई आइस जिसे हम कहेंगे, तो इनके गैसेस फेज में वो मॉलिक्यूल जो है सॉल्वेंट जैसे बिहेव करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिहेव करते हैं। इट क्रिएट द होमोजेनियस कंडीशन फॉर द रिएक्शन एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। So this is the mechanism. We can use the supercritical fluid as the alternative for the conventional organic substances. Secondly, we can use the ionic liquid as an alternative, in which we can use certain kind of ionic liquid instead of the volatile organic solvent. Ionic liquids के benefits क्या होता है कि ionic liquids का जो boiling point होता है वो बहुत ज़्यादा high होता है। मतलब at ordinary condition they are in the liquid state, even that some ionic liquid are in the solid state at room temperature. जब भी हमें इसे हीट करनी होती है फिर उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा और उसमें हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं। लाइकवाइज द वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आयनिक लिक्विड में से कोई वेपर प्रेशर उसमें क्रिएट नहीं होता है। इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, सो इट इज नॉट इवैपोरेटेड इन द एटमॉस्फेयर, जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवैपोरेट होते हैं और एटमॉस्फेयर में अलग अलग स्टेज पे अपना इफेक्ट बताएंगे, तो वैसे आयनिक लिक्विड में नहीं होता। थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ दैट आयनिक लिक्विड इज दैट इट कैन बी रीयूजेबल। अगर आप प्रोडक्ट उसमें बना लेते हो, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद आयनिक लिक्विड में से आप प्रोडक्ट को निकाल लो, तो आयनिक लिक्विड जो भी आपको आइसोलेट हुआ है उसे हम अगेन नेक्स्ट रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी रिएक्शन हम आयनिक लिक्विड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड से कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे ग्रीन रिएक्शन। सो वी कैन अवॉइड दिस सॉल्वेंट कॉलम. We can use instead of this, the first one is preferable. If there is no solvent available in the first column, then we will prefer the second one.
Now in this lecture we will going to discuss the three important principles: selection of starting material and renewable raw material, second one is the use of protecting and blocking group, third one is the use of catalyst. So let's start. So the next principle is the selection of starting material and renewable raw material. According to this principle, if we consider the selection of starting material and renewable raw material, the raw material should be, or the raw material similarly हमें feedstock भी उसे बोलते हैं. जब भी feedstock का वर्ड यूज होता है तो इट इंडिकेट द रॉ मटेरियल एंड वाइस वर्सा. तो रॉ मटेरियल ऐसा होना चाहिए, जब जब पॉसिबल हो तो हमें रॉ मटेरियल ऐसे ही यूज करने हैं जो नॉन डिप्लेटिंग है, जो खत्म नहीं होने वाले हैं, रिन्यूएबल है. तो उस तरीके की रॉ मटेरियल जो है हमें यूज करने हैं. जब भी हमें पॉसिबल हो, कोई भी प्रोसेस में उसे इस्तेमाल करना पॉसिबल हो, तो हमें प्रेफर करना है जो रॉ मटेरियल है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अगर मिला है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा रेदर देन द depleting material. Now what is the difference between the renewable and non-renewable? Renewable material is that material can be produced or reproduced again and again. Now in consideration of the renewable feedstock that can be obtained from the two sources, that is the living source, plant or animals. Depleting resources is nothing but that resources can be reduced as it is used. Petroleum product abundant amount में नहीं है, वो limited अमाउंट में है, और अगर हम उसे कंटिन्यूसली इस्तेमाल में लाते हैं तो उसका अमाउंट जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है. तो इस तरीके का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो जनरेशन करने के लिए, उसे बनाने के लिए, या तो फिर वो बनने के लिए, बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बनने के लिए जो भी समय लगेगा वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर. पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनने के लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर की वेटिंग करनी होगी और उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट जनरेट होगा. तो ऐसा रिसोर्सेज जो भी होगा उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे. तो बहुत सारी बात, हम जब भी रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल कंसिडर तो सोर्स जो है वो बायोलॉजिकल सोर्स अगर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, प्लांट से है, या तो फिर एनिमल से है, देन दैट कंसिडर एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कोई अल्टरनेटिव अगर पॉसिबल होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का तो उसे हमें ध्यान में रखना है और उस अकॉर्डिंग वो रिएक्शन या तो प्रोसेस जो है वो डेवलप करनी होती है. जब भी टेक्निकली यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, इफ वी कंसिडर द टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली प्रैक्टिकेबल, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है, लेकिन अगर उसे हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी रिएक्शन में ऐसी बातें होती है कि इकोनॉमिकली वो बहुत सारा महंगा प्रोडक्ट होता है. सो इफ वी कंसिडर व्हाई द बायोप्लास्टिक इज नॉट that much is in use in nowadays, when we use that particular bioplastic, it is less hazardous to the environment. Still हम बायोप्लास्टिक का ऐसे लार्ज क्वांटिटी में यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं. तो इसका रीजन है बिकॉज द बायोप्लास्टिक इज मोर कॉस्टलियर, और वी कैन से द लेस इकोनॉमिक एज पर देयर यूज. तो इसका जवाब ये होगा कि जब भी हम बायोप्लास्टिक का अल्टरनेट हम कंसिडर करते हैं तो बायोप्लास्टिक जो है उसको बनाने में जो भी प्रोसेस यूटिलाइज हुई तो इकोनॉमी वहाँ पे बढ़ जाती है. सारी बात ऐसा होता है कि हमें अल्टरनेटिव मटेरियल जो है, रिन्यूएबल फीडस्टॉक जो है वो अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से हमें उसे इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होता है. सिमिलरली द इकोनॉमी ऑफ दैट मटेरियल इज नॉट सुटेबल. If we consider the petrol and their alternative as that as a methanol or ethanol, अगर उसका इस्तेमाल हम पेट्रोल की जगह पे करते हैं तो that is a renewable, simple. But we cannot use the 100% अल्कोहल हम फ्यूल एज अ फ्यूल यूज नहीं कर पाते because it is not technically possible. जो इंस्ट्रूमेंट आज हम यूज कर रहे हैं, जो इंजन बाइक्स में लगी हुई है, तो उसकी वजह से हम टेक्निकली 100% अल्कोहल एज अ फ्यूल नहीं यूज कर पा रहे. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अल्टरनेटिव रिन्यूएबल फीडस्टॉक जो है वो अवेलेबल होती है, लेकिन टेक्निकली और इकोनॉमिकली पॉसिबल होती नहीं, तो उसे हम अवॉइड करके जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसे से ही प्रोडक्शन करेंगे, इवन दैट इट इज नॉन ग्रीनर. सो दिस प्रिंसिपल इज अप्लाई व्हेनेवर इट इज टेक्निकली और इकोनॉमिकली फिजिबल और पॉसिबल. ये आपको ख्याल में रखना है. If you consider the starting material for the synthetic process, the mostly they are petrochemicals. We are already discussed the main raw material is obtained as a raw material from the or purification of the petroleum substances. The petroleum product itself is a non-renewable resource. तो अगर हम non-renewable resource use कर रहे हैं तो उसे हम ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और scarcity of that material is increases day by day. तो इसका अल्टरनेटिव हम क्या दे सकते हैं? तो इसका अल्टरनेटिव हम दे सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज.
जो भी रॉ मटेरियल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी टॉक्सिसिटी लेस होनी चाहिए और जब भी पॉसिबल हो रिन्यूएबल कैटेगरी से होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जनरेट होती है, तो नेचुरल सोर्स है और सिंथेटिक रूट से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है जनरेट कर सकते हैं। मीथेन गैस अगर हम बात करें तो नेचुरली ये ऑब्टेन होती है नेचुरल रिसोर्सेज एज अ मार्श गैस, तो डिकम्पोजिशन होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहां से ये गैस जो बनती है वहां से कलेक्शन करके मीथेन गैस जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन एज अ कार्बन सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हाइड्रोकार्बन सोर्स, तो इनका इस्तेमाल करके हम कुछ मटेरियल्स में, तो ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस हमें यहाँ पे मिल रही है उनका पार्शियल कंबशन करके हम यहाँ पे उनसे एसिटिलीन जो है इस मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट इज द सोर्स ऑफ मेनी अदर मटेरियल और द प्रिपरेशन सच एज इथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, विनिल एसीटेट। तो यहाँ पे एसिटिलीन जो है उसका मेन सोर्स पेट्रोकेमिकल्स है। इंस्टेड ऑफ दैट पेट्रोकेमिकल वी कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन गैस. We can obtain this acetylene from the renewable resources. So we can avoid this petroleum source and we can use the renewable source carbon dioxide and methane to prepare the acetylene. If this acetylene is obtained from the renewable resources and it is utilized for the further preparation of ethyl alcohol, acetaldehyde and vinyl acetate, then the whole process is considered as a green process. Now the next principle is use of protecting and blocking group. Now यहाँ पे हमें समझना होगा कि protecting and blocking group क्या होते हैं, क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्शन करते वक्त जो भी रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं उनका एक स्पेसिफिक साइट ऑफ रिएक्शन का एक्शन होना चाहिए। तो वहाँ पे वो रिएक्शन तो करते हैं लेकिन उसके अलावा अगर उस मॉलिक्यूल में अगर दूसरी साइट अवेलेबल है तो वहाँ पे भी वो रिएक्शन करेंगे। नाउ वी ओनली नीड टू रिएक्ट ऑन द वन साइड एंड नॉट ऑन द अनदर साइड. Now we need that reagent should be react on the one side and not on another side. Then we need the protection. अगर मॉलिक्यूल में A साइड और B साइड है, यहाँ पे हम reagent इस्तेमाल कर रहे हैं R reagent. It is not selective reagent. It can react with the A side also and B side also. So it will produce the both side product. तो A में भी changes हो गए और B में भी changes हो गए. But what we expected, we should require this reaction like A में ही change हो और B जो है वो as it is रहे. Then we need to protect this B. So this kind of reagent which can protect this B at the time of reaction, then only the reagent act over the A, B is protected. Again deprotection chemistry जो है उसका इस्तेमाल करके हम B पे लगा हुआ जो प्रोटेक्शन है उसे निकालना होगा और फिर हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो एक्सपेक्टेड है हमें like this. तो इस तरीके की जो भी कुछ रिएक्शन हमें करवानी होगी तो यहाँ पे प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। तो जब भी प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन का इस्तेमाल अगर होता है तो उस रिएक्शन में फर्स्ट वी नीड द प्रोटेक्शन, देन वी नीड द रिएजेंट एंड देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वी नीड द डिप्रोटेक्शन. सो द नंबर ऑफ स्टेप इन द रिएक्शन इज इंक्रीजेस. जब भी हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं मतलब उसका एक नया से डेरिवेटिव हम बना रहे हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है मतलब डेरिवेटिव में उसे कन्वर्ट कर रहा है। रिएक्शन से ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि एग्जैक्टली होता क्या है रिएक्शन में। तो प्रोटेक्शन करते वक्त हमें क्या करना है, तो प्रोटेक्शन करते वक्त हम एक रिएजेंट उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद डिप्रोटेक्शन करके वापस उसे अपने एक्चुअल सिचुएशन एक्चुअल कंडीशन में ला रहे हैं। तो इन चीज़ों में जब भी प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन हमें करनी होती है तो अननेसेसरी सॉल्वेंट अननेसेसरी केमिकल्स जो है वो यूटिलाइज होता है। अगर हम प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन ना करते हुए कोई सिलेक्टिव रिएजेंट अगर इस्तेमाल कर ले तो इस तरीके की रिएक्शन का रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जिस ग्रुप पे हमें रिएक्शन करवानी है वहाँ पे रिएक्शन हो जाए लेकिन अनदर ग्रुप जो है वो प्रोटेक्टेड रहे विदाउट यूजिंग द प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन केमिस्ट्री। तो डेरिवेटाइजेशन का जो भी कंसेप्ट यहाँ पे होगा उसकी वजह से कंपाउंड में लगने वाली क्वांटिटीज जो है वो बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई जो कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे होगी वो वेस्ट एज अ वेस्ट कंसिडर होगी। जो भी रिएक्शन आप एडिशनल कर रहे हो यहाँ पे वेस्ट होगा और वेस्ट जो भी होगा वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है। तो इस तरीके की रिएक्शन जो है वो हमें अवॉइड करनी है। अगर इस तरीके की रिएक्शन होती है तो हमें उसका अल्टरनेटिव देखना है जिस अल्टरनेटिव से प्रोटेक्शन हमें अवॉइड करनी होगी। तो इसको कंसिडर करते वक्त हम कंसिडर करते हैं कि दिस रिएक्शन इन विच प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन ग्रुप. नाउ कंसिडर दिस NH2 ग्रुप एंड साइनाइड ग्रुप.
बोथ आर हाईली रिएक्टिव ग्रुप्स। अगर हम इन दोनों ग्रुप को अगर कंसिडर करें तो बोथ आर हाईली रिएक्टिव ग्रुप। वी नीड टू कन्वर्ट दिस साइनाइड इनटू अल्डिहाइड, बट वी नीड टू कन्वर्ट दिस साइनाइड इनटू अल्डिहाइड बाय यूजिंग HCl SnCl2, HCl and SnCl2. This is the particular reagent which convert this cyanide into the CHO. But if this reagent is react over this first component, tin chloride in acid is react with M-amino benzonitrile, then it also react with this NH2 as well as this Cl. तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो NH2 ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट। जिंजर क्लोराइड जो है उसका इस्तेमाल करते हुए हम इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, और इस प्रोटेक्शन के बाद इस रिएजेंट का NH ग्रुप पे कोई असर नहीं होगा। इस तरीके से NH2 ग्रुप जो है वो मास्क हो चुका है, प्रोटेक्ट हो चुका है, ऊपर से उसको कवर हो चुका है। मतलब NH2 ग्रुप है वहां पे, लेकिन वो अभी अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्म में है क्योंकि उसका डेरिवेटिव बन चुका है। इस डेरिवेटिव होने के बाद रिएक्शन जो है वो खाली साइनाइड होगी। इस डेरिवेटिव के बनने के बाद रिएक्शन है, इस डेरिवेटिव के बनने के बाद रिएक्शन ओनली हैपन ओवर द साइनाइड ग्रुप, एंड दैट्स व्हाई द साइनाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। सिमिलरली जब जैसे ही अल्डिहाइड यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, वैसे NH2 ग्रुप जो हमने प्रोटेक्ट किया था उसे डीप्रोटेक्ट करना होगा, ब्रेक डाउन करनी होगी। ये वाली लाइसिस यहाँ से होगा तो डीप्रोटेक्शन होगा। कोई भी एसिड यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस हम करवा सकते हैं, तो ये यहाँ पे डीप्रोटेक्शन होगा और हमें स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से NH2 ग्रुप जो है एज इट इज मिल जाएगा। तो NH2 ग्रुप कुछ समय के लिए मास्क हुआ था रिएक्शन में, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसे हमने वापस निकाल लिया है। तो इस तरीके की रिएक्शन जो है उसमें प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन की केमिस्ट्री हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ कंसिडर द सेकेंड रिएक्शन वेयर देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द टू carbonyl group, and if we use the lithium aluminum hydride, it is non-selective reagent. It can react with this first one carbonyl and second carbonyl, so it can be convert this both carbonyl into the alcohol. Similarly it can be reduce that carbonyl into alcohol. तो अगर हमें ओनली इस कार्बोनिल का रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमें फर्स्ट कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करना होगा। दैट प्रोटेक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डायोल, 1,2-डायोल। इसके हेल्प से, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पे हम बता रहे हैं, दैट इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन। सिमिलरली क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल सा एसिड जो है, एसिड यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में इथिलीन ग्लाइकोल अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो कार्बोनिल को मास्क करेगा। इथिलीन ग्लाइकोल कैन बी एक्ट एज अ मास्किंग एजेंट, और मास्किंग एजेंट होने की वजह से यहाँ पे जो ग्लाइकोल है यहाँ से न्यू स्ट्रक्चर बनेगा जिसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो कार्बोनिल का जो फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड था उसका जो कुछ स्ट्रक्चर होगा वो वही है, लेकिन वो मास्क कंडीशन में है, दैट इज अ प्रोटेक्टेड वन। आफ्टर दैट प्रोटेक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ओनली रिएक्ट विद दिस ईस्टर पार्ट, जो ईथर पार्ट है। आफ्टर दैट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ओनली रिएक्ट विद दिस ईथर पार्ट। ईथर पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। उसके बाद जो प्रोटेक्शन बनाया हुआ है उसे कोई भी माइल्ड एसिड का इस्तेमाल करते हुए हम निकाल पाएंगे। तो इस तरीके की जो भी कुछ रिएक्शन होगी उसे हम बोलेंगे प्रोटेक्टिंग एंड डिप्रोटेक्टिंग केमिस्ट्री। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन केमिस्ट्री। सो इफ वी want to carry out this reaction, so we can avoid this alternative and we can use the specific reagent that can only react with this ester, not over the carbonyl group. तो इस तरीके की reagent जो है उसका हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं एंड प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन केमिस्ट्री का अवॉइड जो है, प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन केमिस्ट्री जो है उसे अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल where the carbonyl group is present in that two position, the first one and the second one, the glycol is not react with this one because there is a less delta positive characteristic. ऐसा क्यों होता है? तो इसकी रीजन है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक जो होती है कार्बोनिल की ज्यादा होती है, ईस्टर में कम होती है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। इट कैन बी रिड्यूस दैट डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट्स व्हाई द डीलोकलाइजेशन, and that's why the glycol is not protecting or reacting with this side, instead of that it is react with this side. तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, ग्लाइकॉल जो है उसे प्रोटेक्ट होगा। ग्लाइकॉल प्रोटेक्शन कंप्लीट होने के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम इस ईस्टर ग्रुप को रिड्यूस कर पाएंगे अल्कोहल में, और जैसे ही अल्कोहल में इसका रिडक्शन हो जाता है उसे अगेन हम ग्लाइकॉल में कन्वर्ट कर, जैसे ही इस इंटरमीडिएट में आ जाती है तो ग्लाइकॉल को हम रिमूव कर पाएंगे
एक माइल्ड एसिड में, ग्लाइकोल को हम रिमूव कर पाएंगे यूजिंग द माइल्ड एसिड कैटालाइज. If we not use the protecting chemistry, then the both functional group of that carbonyl, first one and the second carbonyl, get reduced into alcohol. So whenever we need this kind of selectivity, we use the protecting and deprotection chemistry. So this kind of protection and protection chemistry considered as a, this kind of protection and deprotection chemistry should be avoided. Now in the next principle, use of the catalysis. Now the what is meant by catalysis? Catalysis is a reagent. Reagent is not actually taking part in the reaction, but it can be transfer or it can be alter the rate of reaction. Catalysis is nothing but the reagent which alter the rate of chemical transformation, but it is not consumed during the reaction. In other words, we can say that it cannot be taking part in the reaction. Not consumed means not taking part in the reaction. The catalyst is the catalytic reagent as a selective as possible as the superior in the stoichiometric reagent. तो जब भी हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट जो है वो एक रिएजेंट की तरह एक्ट होता है. रिएजेंट की तरह एक्ट होते वक्त हम यहाँ पे एक बात ख्याल में रखेंगे कि रिएजेंट को जैसे स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी में हमें ऐड करना होता है, वैसे कैटलिस्ट का एडिशन होता नहीं है. बहुत कम क्वांटिटी में अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो भी हमें ये रिएक्शन कंप्लीट होगी. रिएक्शन जब भी हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो बहुत सारी वेस्टेज जो होने वाली है, जो स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट में हम रिएजेंट यूज करने वाले थे उसकी होती नहीं है. तो अल्टीमेटली द फर्स्ट प्रिंसिपल गेट द लोअरिंग ऑफ वेस्टेज. सेकेंडली, जब भी हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो रिएक्शन का जो भी कुछ रेट होगा उसमें रिडक्शन होता है. अगर रिएक्शन का रेट रिडक्शन होगा तो दैट टाइप ऑफ कैटालिसिस कंडीशन और दैट टाइप ऑफ कैटालिसिस. So next principle is the principle where the use of catalyst is considered. If we consider the catalyst, तो catalyst exactly क्या होता है अगर हम ये जानना चाहें तो catalyst is the substance that can alter the chemical transformation but it is not consumed during the reaction. यहाँ पे इस तरह की डेफिनेशन हम देख रहे हैं. तो कैटलिस्ट ऐसा कोई सब्सटेंस है जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अल्टर कर रहा है, बढ़ा रहा है या कम कर रहा है विदाउट कंज्यूमिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन. रिएक्शन में कंजम्पशन हो नहीं रहा, मतलब उसका विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. हम इस तरीके से कैटलिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं. तो कैटलिस्ट एज अ रिएजेंट हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो रिएजेंट और कैटलिस्ट में डिफरेंस होता क्या है. तो अगर हम कंसिडर करें कि कैटलिस्ट एज अ रिएजेंट और ऑर्डिनरी रिएजेंट, दैट ऑर्डिनरी रिएजेंट इज नोन एज द स्टोइचोमेट्रिक रिएजेंट. स्टोइचोमेट्रिक रिएजेंट मतलब क्या होता है कि जब भी हमें कोई रिएक्शन करनी होती है तो इक्वल क्वांटिटीज में हमें रिएजेंट को भी ऐड करना होता है. फॉर एग्जांपल, इफ वी कंसीडर द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन विच ब्रेकडाउन ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज नीडेड, तो 100 मॉलिक्यूल अगर होते हैं तो उसके लिए हमें बेस एसिड के 100 आयन जो है वो ऐड करना. देन दैट काइंड ऑफ इक्वल टू इक्वल मोल प्रोपोर्शन जो भी कुछ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोइचोमेट्री. मतलब सेम क्वांटिटीज इन मॉलिक्यूलर लेवल और वी कैन से मोलर. इस तरीके का जो रिएजेंट होता है वो नॉर्मल स्टोइचोमेट्रिक रिएजेंट होता है जो नॉर्मली यूज होता है. वी कंसीडर द कैटलिस्ट रिएजेंट इज ऑलवेज सुपीरियर ओवर द नॉर्मल स्टोइचोमेट्रिक रिएजेंट. ऐसा क्यों होता है इसका हम आगे डिस्कशन करते हैं. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो भी कुछ वेस्ट बनता है तो वो लिंक करता है कन्वेंशनल मेथड में यूज होने वाले स्टोइचोमेट्रिक रिएजेंट से. जो भी हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रिएजेंट का कोई कन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा. न्यू प्रोडक्ट जो है वो उस रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा. अगर वो बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो इट कंसिडर एज अ वेस्ट. हेंस द स्टोइचोमेट्रिक रिएजेंट इज ऑलवेज लिंक विद द फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट. तो कैटलिस्ट एक कन्वेंशनल स्टोइचोमेट्रिक रिएजेंट नहीं है, मतलब ये वाला जो इफेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट ये रिड्यूस हो जाता है. कैसे रिड्यूस होगा? बिकॉज द कैटलिस्ट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, सो इट इज नॉट नीडेड इन द स्टोइचोमेट्रिक रेशियो. इट इज नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. अगर कोई वेस्टेज यहाँ पे बनेगा तो क्वांटिटी इतनी स्मॉल होगी तो इट कैन बी निग्लिजिबल. सेकेंड, हम अगर बात करते हैं तो अगर कैटलिस्ट रिएक्शन और कैटलिस्ट रिएक्शन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो reaction comparison with the stoichiometric and the catalytic reaction, the catalytic reaction is more efficient as compared to the conventional method. तो एक क्यों होता है? Because of the next consideration, जब भी हम कोई कैटालिसिस रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज कैटालिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, in which it increases the rate of reaction, either it also decreases the rate of reaction. पर जब भी हम कैटालिसिस की बात करते हैं तो पॉजिटिव कैटालिसिस को कंसिडर करके
हम यहाँ पे दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। जो भी कोई कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कम एनर्जी में रिएक्शन कंप्लीट होती है और यहाँ पे प्रोडक्ट का यील्ड, जहाँ पे एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, वो बढ़ जाती है और प्रोडक्ट इजीली फॉर्म हो जाता है। एनर्जी इनपुट जो है वो भी कम हो जाती है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल कैटालिसिस से बिलोंग करते हैं। कैटालिसिस की क्वांटिटी कम लगने वाली है, बहुत सारे कैटालिसिस नॉन हजार्डस हो गए। जब भी हम कैटालिसिस का इस्तेमाल करते हैं तो कैटालिसिस ऑलवेज गिव द सिलेक्टिविटी इन द रिएक्शन। इन द मोस्ट ऑफ द टाइम इट गिव्स द सिलेक्टिविटी इन द रिएक्शन, सो इट कैन बी इम्प्रूव द यील्ड ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। डिजायर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। सिलेक्टिविटी अगर बढ़ जाती है कैटालिसिस के यूज से तो हमें डिजायर प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाएगी, मतलब अल्टीमेटली वी गेन द मोर प्रोडक्ट इन द होल प्रोसेस। तो इस वजह से कैटालिसिस ऑलवेज प्रेफर किए जाते हैं ओवर द स्टोइचियोमेट्रिक रिएजेंट। नाउ हाउ द कैटालिसिस वर्क? द कैटालिसिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल विच इज शोन इन दिस डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनर्जी जो है यहाँ से एक कोऑर्डिनेट एनर्जी का दिया हुआ है और दूसरा कोऑर्डिनेट रिएक्शन प्रोग्रेस का दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो x and y इज द स्टार्टिंग मटेरियल एंड z इज द प्रोडक्ट। इसे ऑर्डिनरी बनने के लिए यहाँ से इस ब्लैक जो आपको पीक दिख रहा है उससे गुजरना होगा और यहाँ पे जो भी कुछ एनर्जी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इट रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। इट इज द जीरो एनर्जी, अप टू दैट it is considered as the energy of activation, so it is considered as the energy of activation EA। रिक्वायरमेंट है तो कहाँ से कहाँ पे कंसिडर होगी? तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल का यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी कुछ एनर्जी इंक्रीज हो रही है उसे हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटालिस्ट। द ब्लैक लाइन इंडिकेट द विदाउट कैटालिसिस रिएक्शन। जब भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ तक जाती है तभी प्रोडक्ट में ट्रांजिशन स्टेट या वहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। बट जब भी हम कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सडनली दैट एक्टिवेशन एनर्जी गेट डिक्रीजेस एंड वी गेट द न्यू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पीक विच इज शोन इन दिस रेड लाइन। अगर कैटालिसिस का इस्तेमाल करते हैं तो रेड लाइन में जो ग्राफ बताई हुई है उसके, अगर कैटालिस्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो रेड लाइन में जो ग्राफ बताई है उसके हिसाब से यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अब रिड्यूस हो चुकी है। पहले जो लगने वाली थी यहाँ तक अब वो बहुत कम हो चुकी है। इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से जो भी कुछ रिक्वायरमेंट एनर्जी की पूरी रिएक्शन कंप्लीशन के लिए होती है वो बहुत कम हो जाती है। दैट्स व्हाई द कैटालिसिस और कैटालिस्ट इज ऑलवेज प्रेफर ओवर द स्टोइचियोमेट्रिक रिएजेंट्स। जो प्रो फैक्ट हम यहाँ पे देखेंगे जिसमें कैटालिसिस का इस्तेमाल करते हुए एग्जैक्टली क्या किया जाता है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हो कि एक एयर फिल्टर, जो एयर फिल्टर की स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो नैनो मटेरियल कोटेड एयर फिल्टर है जिसमें नैनो मटेरियल विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दैट इज अ प्लैटिनम कैटालाइज सरफेस। दिस मटेरियल इज अ प्लैटिनम कैटालाइज सरफेस। ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने की पावर इस ओवरऑल कैटलिस्ट में। तो इस फिल्टर से सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पास होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस रिएक्शन इज हैपन and we get the CO2 that is a less toxic material instead of the कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में होगा पॉसिबली, और अगर इस फिल्टर से पास होता है और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाईली टॉक्सिक है उसका कन्वर्जन होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो लेस टॉक्सिक मटेरियल है। सिमिलरली दिस काइंड ऑफ एयर फिल्टर कैन ऑल्सो कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो उसमें फॉर्मिक एसिड में उसका कन्वर्जन होगा बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन, दैट फॉर्मिक एसिड कैन बी इजीली डिपॉजिटेड ओवर द ग्राउंड। तो इस तरीके का कैटालिसिस जो है वो रिएक्शन कैरी करते वक्त अपनी रिएक्शन जो है वो बताता है। If we consider the example of catalysis, then there is a plenty number of example, बहुत सारे example होते हैं जिसमें रेनी निकेल का एक example हम consider करते हैं। In presence of nickel, hydrogen gas can be attached over this carbon-carbon double bond. So there is a reduction. आप लोग सोचोगे कि हाइड्रोजन गैस के लिए निकेल एज अ कैटलिस्ट क्यों होना चाहिए, या तो फिर सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस के लिए पैलेडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो जनरली जब भी इस तरीके की रिएक्शन होती है तो जो बेसिक स्केलेटन होती है रिएक्शन का, दिस वन इज द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये सरफेस कैटलिस्ट का है। हाइड्रोजन गैस जो इजीली अवेलेबल है इस मॉलिक्यूल के लिए, without this catalysis this reaction can be take place, but there is a chances of explosion, there is a chances of hazards when we use this reaction without catalysis.
हाइड्रोजन गैस जिसको इजीली इनकॉर्पोरेट करना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है, अगर उसे करना है इनकॉर्पोरेशन देन वी यूज द सरफेस कैटालिसिस। इन दिस कंसेप्ट हाइड्रोजन इज पार्शियली अटैच विद दिस सरफेस, प्लैटिनम सरफेस हो गया तो फिर पैलेडियम हो गया तो फिर निकेल होगा, उस पर इसकी अटैचमेंट होती है। जैसे ही क्लोज कॉन्टैक्ट में अगर ये मॉलिक्यूल आ जाता है तो हाइड्रोजन की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस कैटालिटिक सरफेस टू दिस कार्बन हो जाती है और रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी shown by this catalytic surface illustration where the hydrogen is added over the catalytic surface, carbon carbon double bond is in the close contact, and then this hydrogen is transferred to this carbon and this bond get break down and this molecule is reduced and obtained as a product। तो इस तरीके की रिएक्शन जो है वो कैटालिसिस में होती है। फेस ट्रांसफर कैटालिसिस का एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बेंजाइल क्लोराइड जो है उसकी रिएक्शन करने के लिए हमें एक्वेस पोटेशियम साइनाइड में अगर रिएक्शन करवानी है देन वी यूज द फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट विच मैनेज दिस एक्वेस फेज विद दिस ऑर्गेनिक फेज, दोनों को मिक्स करने का काम करेगी और यहाँ पे हमें बेंजाइल साइनाइड जो है एज अ प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे एक सिलेक्टिविटी कैटालिसिस की हम यहाँ पे देख पाते हैं नोन एज द लीडलार्ड कैटालिस्ट। तो लीडलार्ड कैटालिस्ट में होता क्या है कि जनरली अगर हम हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं पैलेडियम के साथ विदाउट यूजिंग बेरियम सल्फेट then this reaction is underwent for the formation of, अगर हम यहाँ पे बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल ना करें और H2PD का इस्तेमाल करें तो रिएक्शन में क्या होता है कि जनरली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दिस इज दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट CH2 CH2 and CH3। so overall reduction of this carbon carbon triple bond when we use the barium sulfate then this catalyst is known as a lead lard catalyst। अगर हम lead lard catalyst की बात करें तो कैटालिसिस में बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस से हुआ क्या है कि इस रिएक्शन सरफेस में कुछ सरफेस जो है बेरियम सल्फेट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, मतलब इसे बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। द सरफेस ऑफ कैटालिसिस इज नाउ इनएक्टिव टू अटैच विद दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अटैचमेंट जो है बहुत कम क्वांटिटी में होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर रिएक्शन जो है इस स्टेज में आने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है जो रिडक्शन नेक्स्ट होने वाला था उस तक नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की जो भी कुछ रिएक्शन होगी उसे हम बोलेंगे रिएक्शन कैरिड आउट, that is a lead lard kind of reaction is generally explained in the form of catalytic poisoning। तो कैटालिसिस में यूज की होता है क्या रिएक्शन है तो आप इस दोनों एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे। क्राउन ईथर भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कुछ रिएक्शन में जिसमें टोल्यून का ऑक्सीडेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड द क्राउन ईथर इज एक्ट एज अ कैटालिस्ट, इट एक्ट यहाँ पे बेंजोइक एसिड में इसका कन्वर्जन। सो ओवरऑल यहाँ पे हमने 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक, सेकेंड प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया वो था यूज ऑफ ब्लॉकिंग प्रोटेक्शन, सेकेंड प्रिंसिपल जो था वो प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन केमिस्ट्री से रिलेटेड था, और थर्ड प्रिंसिपल हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया तो वो था यूज ऑफ कैटालिसिस। जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल इट कंसिडर दैट रिएक्शन एज अ green reaction. Okay friends, in this lecture we discussed the 3 important principles in which use of renewable feedstock is the first one, second one is the use of protection and deprotection and blocking chemistry, and the third one is the catalysis. In the next lecture we will discuss the last 3 principles out of the 12 principle. Thank you.